Welcome everyone to lecture 14 of Service Law series, and today's focus is on principle of seniority determination. Let's begin with the introduction. Seniority in public service is a critical concept that determines an employee's position relative to others in terms of promotions, postings and other service benefits. जो seniority है, it exists in relation to others. It's a relative concept. And why is it important? Because on basis of seniority, promotions, postings और जो भी सर्विस बेनिफिट्स हैं वो अक्रू करते हैं. तो seniority एक relative concept है. And secondly, it's essential concept in service law क्योंकि उसके basis पे further promotions और ये सब होता है. Now, let's see how seniority is being determined. So there is the case of direct recruits and promotees. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, देन एज पर द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि प्रिपेयर्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट शैल बी द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी. ठीक है. जो AIR 1 है, ही शैल बी कंसिडर्ड सीनियर टू अदर्स who have the lower rank, and he shall be considered first for promotion and other perks and perquisites. Now, the date which shall be considered for promotion shall be the date of appointment. ठीक है. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को कंसिडर किया जाएगा जब भी हम सीनियरिटी को डिटरमाइन करेंगे. 1992 से पहले ऐसा नहीं था. द डेट ऑफ कन्फर्मेशन वॉज कंसिडर्ड, बट अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को कंसिडर किया जाता है. सो इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रिपेयर करती है जिसके बेसिस पे सीनियरिटी डिसाइड होगी, एंड इट शैल बी डिसाइडेड फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. इन केस ऑफ प्रोमोटीज के केस में जो सीनियरिटी है, इट शैल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ whether on the date of person was appointed in the feeder grade. Okay, so appointment of person in feeder grade, as in when he was at this level and now he is promoted to this level. So here when he was appointed, it shall be considered as the date for determining seniority in the promotees as well. ठीक है. तो दोनों में यही रहेगा. Now let's see the general principles. The date of appointment जो है उसको consider किया जाएगा. Recruitment का डिपेंड करेगा क्या वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है या फिर थ्रू प्रमोशन है. Then there is quota rota system. There shall be a quota. Sometimes that certain number of people shall be taken from the direct recruitment and certain from the promotees, and there can be a rota system, that is the rotation system, that certain number is fixed for this year, then it comes in rotation. Again, the merit is sometimes considered above the seniority. अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, then seniority can be sidelined there. वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको प्रेफरेंस मिलेगा. देन द कॉन्टीन्यूस सर्विस, इट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर जहाँ पे सीनियरिटी को प्रेफरेंस मिला जा सकता है कि अगर आप अनइंटरप्टेडली परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सर्विस पे, सेम कैडर सेम पोस्ट में, तो वहाँ पे भी सीनियरिटी जो है उस बेसिस पे डिसाइड की जा सकती है. नाउ लेट्स कम टू दिस, whether there is seniority between the direct recruits and promotee officials. Like how will you decide? So जब भी किसी भी पोस्ट पे दोनों को
साइमल्टेनियसली लिया जाता है डायरेक्ट रिक्रूट्स को और प्रमोटीज को, तो वहाँ पे इंटर से बिटवीन देम आप कैसे सीनियरिटी डिसाइड करेंगे? तो इन दोनों में according to rotation of vacancies between them shall be the basis, for direct recruits and promote officials respectively in recruitment rules. तो जो भी कोटा रोटा सिस्टम रहेगा उसके बेसिस पे इन दोनों के बीच में इंटर से सीनियरिटी क्या रहेगी वो डिसाइड होगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इन द कोटा रोटा रूल. नाउ coming to the case of direct recruits class 2 engineer officers association versus state of Maharashtra. ये बहुत लैंडमार्क केस है इस टॉपिक पे, एंड इसमें कुछ एक डायरेक्शंस दी गई थी दैट विल सी नाउ. सो फर्स्ट, इफ इनकम्बेंट अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू रूल हिज सीनियरिटी हैज़ टू बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. सो हमेशा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिस रहेगा. Secondly, if the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules, but appointee continues in the post uninterruptedly till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. तो जहाँ पे भी कोई officiating capacity में है, what do you mean by officiating capacity is that अगर for example किसी person को उसके हायर पोस्ट को एज अ ऑफिशिएटिंग ऑफिसर दिया गया है. लेट्स से दिस पोस्ट इज वेकेंट एंड दिस पर्सन हु वाज इन फीडर ग्रेड, इन लोअर ग्रेड, ही इज गिवन this post in officiating capacity. He has to perform the functions. He doesn't have it in substantive capacity. But if the vacancy arises and he's given the letter of promotion, then he shall be in the substantive capacity. So जब भी officiating capacity में है तो वहाँ पे जो period of officiating service है उसको भी count किया जाएगा. Third, when appointments are made from more than one source, जहाँ पे भी more than one source होगा, जो हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी लिया है और थ्रू प्रमोशन भी लिया है, वहाँ पे इट इज़ परमिसिबल टू फिक्स अ रेशो. वहाँ पे कोटा रोटा सिस्टम यूज़ होगा और एक रेशो फिक्स कर दी जाएगी फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इफ़ रूल्स आर फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड आर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. और जो भी रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे. If it becomes impossible to adhere to existing quota rule, it should be substituted by appropriate rule to meet the needs of the situation. तो अगर ऐसे कुछ rules हैं जो कि अभी existing situation में काम नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे appropriate rules बनाए जा सकते हैं. Fifth, when quota rule has broken down and appointments are made from one source in excess of the quota. कोटा बेसिकली क्या होता है कि एक रेशो फिक्स किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 अपॉइंटमेंट्स होंगे तो 5 हम प्रमोशंस के थ्रू करेंगे, 5 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करेंगे. और ये कोटा ब्रेक डाउन हो जा रहा है और एक से ज़्यादा, एक सोर्स से हमने ज़्यादा रिक्रूट कर लिए, 6 कर लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से. एंड दिस वॉज मेड आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स. The appointees should not be pushed down below appointees from other sources later. तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपने अपॉइंटमेंट कर लिया और उसके बाद उन्हें आप दूसरे अपॉइंटीज से नीचे सीनियरिटी में ले आएंगे. The rule permits authority to relax provisions relating to the quotas. Ordinarily, the presumption should be raised that there was such relaxation when there is deviation from the quota rule. तो अगर थोड़ा बहुत डेविएशन होता है कोटा रूल से, इट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली अडियर टू. कोटा फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मे बी प्रेस्क्राइब बाय एग्जीक्यूटिव इफ रूल्स आर साइलेंट. लेट्स सी दिस कोटा रोटा रूल. सो कोटा सिस्टम मीन्स स्पेसिफिक पोस्ट कुड बी earmarked फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी एंड रोटा system means vacancies as and when they arise, they are rotated on basis of order and sequence among different registers on a रोस्टर बेसिस. ठीक है, कोटा सिस्टम में कुछ परसेंटेज, कुछ रेशो फिक्स किया जाता है कि डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप ले रहे हैं रिक्रूटमेंट तो किस रेशो में होगा. एंड इन द रोटा सिस्टम इट बेसिकली मीन्स कि जब भी वैकेंसीज अराइज होती हैं
दे आर रोटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर. जो भी एक रोस्टर बेसिस पे उनको रोटेट कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी seniority of different persons, for example of a re-employed officer. तो अगर किसी को भी re-employment किया गया है वहाँ पे seniority का क्या basis रहेगा. Here of a re-appointed person, of ad hoc appointment, and of persons on deputation. तो रीअपॉइंटेड पर्सन के केस में सीनियरिटी जो है एज डायरेक्ट रिक्रूट जो है कंसिडर की जाएगी जब भी उसको दोबारा से एम्प्लॉय किया गया है उस डेट से. देन एडहोक एम्प्लॉयमेंट में जो सीनियरिटी है वो काउंट की जाएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से अगेन एंड नोट फ्रॉम डेट ऑफ कंफर्मेशन. एंड अगर एडहोक सर्विस था इनिशियल पीरियड में, दैट इज़ ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में था, तो वहाँ पे सर्विस विल बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ रेगुलराइजेशन एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑन एडहोक बेसिस. तो जब से यहाँ पे सब्सटेंटिवली ही गॉट द ऑफिस ऑन रेगुलर बेसिस तब से काउंट किया जाएगा. डेपुटेशन में जहाँ पे भी सीनियरिटी की बात आती है तो इट इज़ डिसाइडेड फ्रॉम डेट फ्रॉम विच द ऑफिसर हैज़ बिन होल्डिंग पोस्ट ऑन डेपुटेशन और फ्रॉम डेट ऑन विच ही हैज़ बिन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू सेम और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पेरेंट डिपार्टमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जब से डेपुटेशन की गई थी वो डेट, या फिर जब पेरेंट डिपार्टमेंट में जिस टाइम से उसे अपॉइंट किया गया था वो वाली डेट. नाउ टू कंक्लूड, let's just say that principle of seniority is important in service law because it improves efficiency. For example, in UPSC, if you score more, you get the higher grade, you get the better seniority level. तो इस तरह से efficiency जो है वो आती है. Secondly, it also fosters a equitable work environment कि देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस. ऐसा नहीं है आर्बिट्रेरीली आपने किसी को भी प्रमोट कर दिया. नो, देर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम एंड इट इंश्योर्स हार्मनी बिटवीन डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रमोटीज. तो डायरेक्ट रिक्रूट्स और प्रमोटीज में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी. फॉर एग्जांपल, अगर देयर वर 100 पीपल who were directly recruited in this service, and now out of this 100 people, on basis of reservation, 2 people they got promoted earlier to a higher post, and let's say 50 other people they were promoted later on. तो क्या ये दोनों सेम लेवल पे होंगे या फिर ये अर्लियर प्रमोटेड थे तो विल दे बी कंसिडर्ड सीनियर टू दीज. तो इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन आता है जिसकी वजह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है. तो दैट ऑल्सो इज सॉल्व बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी. रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं दैट हैव टू बी फॉलोड. और इस केस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का रूल फॉलो किया जाता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. So, in this way, the principle of seniority is very essential concept to service law, and it is governed by the service rules of the center or the state, and the quota rota system. There is also other principles that govern this principle. So that's it for this video. We have discussed everything about principle of seniority here. If you still have any doubt, you can comment down below, and please don't forget to like, comment and subscribe the channel.